Hello students, welcome back. Let's start the next topic of third chapter of geography, natural resource, Mediterranean forest. Mediterranean forests are found in that region due to hot and dry summer and warm wet winter created by Mediterranean Sea. जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है, and which is due to the Mediterranean Sea. So these forests are not very much dense as evergreen forest, and these forests are located near the Italy, Spain, Israel, South France, which places near to the Mediterranean Sea. And important tree, सीडर, पाइन. सीडर इज एवरग्रीन ट्री. पाइन, ओलिव, ओलिव जिससे जैतून का तेल बनता है. ओक, सम फ्रूट्स वी कैन फाउंड हियर, ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट. नेक्स्ट इज टेम्परेट deciduous forest. Temperate deciduous forest found in the cool temperate region. These are the places where we can find this type of forest. And feature of these plant, they are not very tall, broad leaves and thick trunk. Even they survive below 10 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. एंड शेड देयर लीव इन ऑटम. और जब ऑटम का सीज़न आता है तो इनके जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं. देयर आर सम ट्री which we can find here. Ash, maple. Ash is a tree who have strong roots. Next is coniferous forest. Coniferous forest found in the extreme climate, extreme cold climate, जहाँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सर्दी होती है. And features of these trees, small needle-like leaves. नीडल-लाइक लीव्स होते हैं. दे आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट वुड ट्री. और जिससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मैचस्टिक, पेपर, फर्नीचर, इन सब चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है. एंड दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन फाइंड दिस कॉनिफेरस फॉरेस्ट. एंड वन अल्टरनेट नेम ऑफ दिस फॉरेस्ट इज ताइगा. जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का नेम हमने पढ़ा था, दैट इज सेल्वा. सेम इज अल्टरनेट नेम of these forest is taiga. Next is tropical grassland. तो अब तक जो हमने पढ़ा, this is all about the forest. Now next, grassland. Where we can find grassland? That area received moderate amount of rainfall. यहाँ बारिश कम होती है. So we can found here shrub, grass and spare vegetation, and this is known as savannas. This is the another name of tropical grassland. And area we can find this type of grassland, America, Brazil के some part, and some part in Australia. And this is the picture of spare vegetation. Next topic is temperate grassland. Temperate grassland we can found an area who have extreme climate with moderate rainfall. क्लाइमेट एक्सट्रीम है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, एंड मॉडरेट रेनफॉल. सम अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड आर गिवन ऑन योर बुक. यूरेशिया में इसका नेम है स्टेपर्स. प्रेरीज नेम ऑफ साउथ अमेरिका. दीज आर द अल्टरनेट नेम कि कौन सी प्लेस पे इस टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या नेम दिया जाता है. सो रीड इट योरसेल्फ. इसके अलावा यहाँ पे कैटल रीडिंग, बिकॉज दिस इज़ द ग्रासलैंड एरिया, तो यहाँ पे कैटल रीडिंग, पशु को रखा जाता है, उनको चरवाया जाता है. इवन सम पार्ट ऑफ दिस ग्रासलैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ बीट एंड मेज. नेक्स्ट इज FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन. It is an institution which was established in Dehradun in Uttarakhand in 1906. What is the purpose of this institution? To increase forest productivity by the scientific manners. कि कैसे साइंटिफिक तरीके से हम जो फॉरेस्ट में की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. These methods are discussed in this institution. Next topic is tundra vegetation. We found it in the high altitude in hilly area में, especially in north of the Arctic
circle, or that type of place always covered with heavy snow. So due to this plant do not grow here. तो यहाँ पे ज़्यादातर plant नहीं हो सकते. Only few vegetation we can found here, that is lichen, sedges, mosses. This is the vegetation which we find in this region, and some type of trees like juniper, birches only develop in the summer season के जब जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट इज डेजर्ट वेजिटेशंस, जो पूरा मारूथल है. सो क्लाइमेट वहाँ पे हॉट और ड्राई रहता है. रेनफॉल बहुत रेयर होती है. सो यहाँ पे फॉरेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं. ओनली थोर्नी बशेस, कैक्टस, अकेशा, दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन वी कैन फाउंड हियर. Now next question is there any need to conserve this natural vegetation? Of course yes, because forests are our natural wealth. हमारी एक जो कुदरत ने दी हुई पूंजी है ये, बट ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रॉय, और हम उसको ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉर अवर ग्रीड, अपने लालच के लिए. लालच क्या है? वी कट डाउन द लार्ज नंबर ऑफ ट्री फॉर मेकिंग इंडस्ट्री, for agriculture purpose, for industrial purpose. So removal of forest by cutting trees, this is known as deforestation. So this is the definition of deforestation. So how can we conserve these forests? There are some points which is given on your book. Number 1, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व. रिजर्व मीनिंग कि एक एरिया को रिजर्व कर दिया, वहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री बनेगी, ना कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, ना वहाँ पे रोड बनेगा. दिस एरिया इज रिजर्व फॉर फॉरेस्ट ओनली. नेक्स्ट इज अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन के यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, प्लांट्स को कट कर दिया गया है, वहाँ पे दोबारा से प्लांट्स को, ट्री को ग्रो करना. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, के जो जंगल की आग है अगर वो एक बार लग जाए तो बहुत तेज़ी से फैलती है. सो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो एक एरिया को क्लियर करके उसके ऊपर पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं. आफ्टर 2 or 3 year दे लीव दैट प्लेस एंड मूव टू अनदर एरिया. सो इससे क्या होता है? दिस इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड बी बैंड. नेक्स्ट इज इनकरेजिंग सोशल फॉरेस्ट्रीज. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है उसके कि हमें क्या क्या फ़ायदे हैं. एंड एट द स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल्स, दैट फॉरेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वन महाउत्सव शुड बी सेलिब्रेट. लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए कि इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इज़ नीड ऑफ आर. तो मेन जो प्रॉब्लम है, हमें इंडस्ट्रीज़ क्यों लगानी पड़ रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को क्यों इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, द रीज़न बिहाइंड इट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट शुड बी कंट्रोल. तो वो फिर हमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इससे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की वो भी सॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. In next lecture I will explain about the wildlife. Thank you students.